برطانیہ نے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندیاں ہٹا دی۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق پاکستان کا نام ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان ایئر لائنز برطانیہ پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ پروازوں کے لیے UK سول ایویشن اتھارٹی سے اجازت لینا ہوگی۔ جین میریٹ نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کا تیسرا بڑا شراکت دار ہے، فضائی رابطوں میں بہتری خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ انہوں نے برطانوی اور پاکستانی ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستانی ایئر لائن سے سفر کی منتظر ہوں۔ پروازوں کے لیے UK سول ایویشن اتھارٹی سے اجازت لینا ہوگی۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے۔ برطانیہ نے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ بڑی خبر سے متعلق آپ کو بتائیں، پاکستان کا نام ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ پاکستان ایئر لائنز برطانیہ پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ APN نیوز رضوان عباسی سے۔ جی رضوان، مزید کہیے گا۔ جی بالکل، برطانوی ہائی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی سے نکال دیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستانی ایئر لائنز اب جو برطانیہ ہے اس کے لیے پروازوں کی جو اجازت ہے وہ اس کی درخواست دے سکتا ہے۔ اور برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق یہ فیصلہ UK ایئر سیفٹی کمیٹی نے پاکستان کی ایویشن سیفٹی میں نمایاں بہتری کے اعتراف میں کیا اور سیفٹی لسٹ سے اخراج کی ایک آزاد اور تکنیکی عمل کے تحت یہ کیا گیا ہے۔ ہائی کمیشن نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق پاکستانی ایئر لائنز کو برطانیہ میں پروازوں کے آغاز کے لیے UK سول ایویشن اتھارٹی سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنا ہوگی، جبکہ برطانوی ہائی کمیشن نے یہ مزید کہا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے جو ماہرین ہیں ان کے مابین قریبی تعاون جو ہوا ہے اس پر وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور پاکستان ایئر لائن سے جو سفر ہے اس کے بھی منتظر ہوں گے۔ اور برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ فضائی رابطوں کی جو بحالی ہے نہ صرف تجارتی سفری سہولیات میں اضافہ کرے گی بلکہ برطانیہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کو آپس میں جو ملاپ ہے اس میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ اور برطانیہ اس وقت پاکستان کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سالانہ تجارتی جو حجم ہے وہ 4.7 بلین پاؤنڈ تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جو پاکستان ایئر لائن کا جو فیصلہ ہوا ہے PIA کا، یہ اب دو طرفہ معاشی تعلقات کو مزید تقویت ملنے میں مدد دے گا۔ جی بہت شکریہ رضوان عباسی، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر غیر ملکی خاتون کے 16 گھنٹے تک محصور رہنے کا معاملہ ہے۔ خاتون کو وفاقی حکومت کی جانب سے آن ارائیول ویزا دے دیا گیا۔ خاتون کل شام سنگاپور سے براستہ چین آن ارائیول ویزا پر اسلام آباد پہنچی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق ڈالرز میں ارجنٹ فیس ادا کرنے کے باوجود خاتون کو 16 گھنٹے تک ویزا جاری نہیں کیا گیا۔ نادرا کی جانب سے آن ارائیول ویزا فراہم کرنے میں تاخیر پر غیر ملکی خاتون کو 16 گھنٹے سے ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل سے۔ جی عمر، مزید کہیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی، یہ غیر ملکی خاتون ہے جو ویزا آن ارائیول کے اوپر پاکستان یعنی اسلام آباد پہنچی تھی اور اس دوران 16 گھنٹے تک ان کو انتظار کرنا پڑا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ڈالرز کے اندر ارجنٹ فیس ادا کی تھی اور اس کے باوجود ان کو پاکستان پہنچنے کے اوپر وہ ویزا ایشو نہیں کیا گیا اور یہ نادرا کی جانب سے تاخیر ہوئی جس کی بنیاد کے اوپر انہیں 16 گھنٹے ایئرپورٹ کے اوپر گزارنے پڑے اور جس کے بعد چونکہ وہ پاکستان میں ایک بزنس مین ہے، ان کی وہ مہمان ہے، تو ان کے بعد جو ہے ان کے جو میزبان ہیں انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے رابطہ کیا اور وہ خاتون پہلی بار پاکستان پہنچی تھی، تو جس کے بعد یہ معاملہ حل ہوا اور ان کو سنگاپور سے وایا چین جو ہے وہ اسلام آباد آئی تھی۔ تو جب یہ مداخلت ہوئی یا ان کے جو میزبان ہیں انہوں نے رابطہ کیا تو اس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے ان کو آن ارائیول ویزا دے دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل اس متعلق بتا رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے پرفارمنس پروموشن کیس میں قرار دیا ہے کہ ہر سرکاری ملازم کو ترقی کے لیے زیر غور لایا جانا اس کا بنیادی حق ہے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کو ہدایت کی ہے کہ وہ درخواست گزار کا کیس 2 ماہ میں میرٹ پر دوبارہ سنے۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے نمائندہ APN نیوز بشارت راجہ سے۔ جی بشارت، مزید کیا کہا گیا عدالت کی جانب سے؟ جی، یہ پرفارمنس پروموشن سے متعلق کیس تھا جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہائی پاور سلیکشن بورڈ دوبارہ 2 ماہ میں درخواست گزار کا کیس میرٹ پر سنے۔ درخواست گزار پولیس سروس کے سینئر افسر تھے، 3 بار ترقی سے محروم ہوئے۔ 2013 سے 2018 تک تمام کارکردگی رپورٹ بہترین تھی۔ ہائی پاور سلیکشن بورڈ نے بغیر ٹھوس وجہ ترقی نہ دی۔ یہ بھی کہا گیا کہ 2019 کی کارکردگی رپورٹ نہ ہونے کی وجہ فیلڈ پوسٹنگ کا نہ ملنا تھا۔ پرفارمنس پروموشن سرکاری ملازمین کا قانونی حق ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ترقی کے اہل افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروموشن دی جا سکتی ہے۔ درخواست گزار کی ساکھ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ ریٹائرڈ افسر کو دیر سے انصاف دینا غیر منصفانہ ہے۔
तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। जी बहुत शुक्रिया बशारत राजा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान की सदारत में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। इजलास में कोरियन एग्जाम बैंक की मदद से 2017 में शुरू किए गए टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे की तखीर और नाकाफी पेशरफ्त पर तशवीश जाहिर की गई। वजारत IT के हुकाम ने बताया कि मंसूबा 2022 तक मुकम्मल होना था, मगर अब तक मुकम्मल नहीं हुआ और 2021 के आखिर तक इस्लामाबाद IT पार्क शुरू नहीं हो सका था। सेक्रेटरी IT ने कहा कि कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों कोरियन हैं और 2024 के आगाज़ तक भी काम की रफ्तार कम थी, ताहम कास्ट में इजाफा नहीं हुआ, हालांकि ताख़ीर हुई। जुनैद अकबर खान ने सवाल उठाया कि ज़ाया शुदा वक्त की जिम्मेदारी किसकी होगी। वजारत ने वादा किया कि मंसूबा 2025 के आखिर तक मुकम्मल और इफ्तिताह हो जाएगा। कमेटी ने 1 माह में मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने कहा कि मंसूबे की तखीर से पाकिस्तान के ख़जाने को 13 अरब रुपये का नुकसान हुआ है और जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। इस हवाले से आपको आगाह करें कि कायमा कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ IT से मुतल्लिक जारी मंसूबों के हवाले से सवालात उठाए गए हैं। बात करेंगे बलूचिस्तान की मानसून बारिशों से अब तक खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक हुए। मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसानात के हवाले से PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में अमवात योब, ज़ियारत, मूसाखेल, खुजदार, लोरलाई, लसपेला और कोहलू में हुई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात से 8 अफराद जख्मी हुए। सूबे में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत से मुख्तलिफ अजला में 58 मकानात को नुकसान पहुँचा। बारिशों से 47 मकानात जुज़वी जबकि 11 मकानात मुकम्मल मुनहदिम हुए। 4 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचा। तूफ़ान, बारिश और यालाबारी से फसलें तबाह हुई। मुतअद्दिद ज़रई ट्यूबवेलों की शमसी प्लेटों को भी नुकसान पहुँचा। PDMA की जानिब से सूबे के मुतासर अजला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सिब्बी में दरियाए नाड़ी, तली नदी और दरियाए लहरी में तुग़यानी के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा इरीगेशन के मुताबिक दरियाए नाड़ी में दरमियाने दर्जे और तली नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। इस मुतल्लिक आपको बताएं सिब्बी से, जहां पर तुग़यानी के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। महकमा इरीगेशन की जानिब से बताया गया दरियाए नाड़ी में दरमियाने दर्जे जबकि तली नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला है। बालाकोट में गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश जारी, दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा। इंतज़ामिया ने सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरीद चौधरी से। मौजूद हूँ बालाकोट में, जहाँ पर गुज़िश्ता रात से सावन की हिमझिम का सिलसिला जारी है और पहाड़ों पर बारिशों के साथ साथ हरियाली और धुंध का हसीन इंतज़ार स्याह को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा है। स्याह की आमद का सिलसिला जारी है। वादी का आगान में मुख्तलिफ मकामात पर शोबरान, नारान, शरान में स्याह मौजूद है, जबकि नदी नाले जो है वो अपनी मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। कहीं से पर भी तुग़यानी या तेज़ सैलाबी रहने की कोई सूरत हाल नहीं है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो गुज़िश्ता 2-2.5 महीने से बारिशों का सिलसिला रुका हुआ था, उससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ होने के साथ साथ आपस में कमी हुई है और लोगों के चेहरे जो है वो खुशगवार हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा जो सिलसिला है स्पेल या आइंदा 24 घंटे तक मकसद से जारी रहने का इम्कान है। जी, और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जुड़वां शहरों की आवाम में शदीद गम गुस्सा। रात के अंधेरे में एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। शहरी हुकूमत से सख्त नाला गिले शिकवे करने लगे। मजीद जानते हैं कि जुड़वां शहरों के रहायशी इस बारे में क्या कहते हैं। का पूरा तेल करें या घर की रोटी कमाएं, गवर्नमेंट की मर्जी है, जो मर्जी करे, हम क्या कह सकते हैं इनको। एक दफा 1 रुपए काम कर देते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर 15 रुपए बढ़ा देते हैं। इस मुल्क में जब रहना है तो इस मुल्क के कानून तो समझने पड़ेंगे और उन पे अमल भी करना पड़ेगा, वरना क्या करें, कहाँ जाएं। पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ बस माड़े बंदे ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। सर आगे महंगाई इतनी है, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें ये बढ़ाई जा रहे हैं, क्या करेगा कोई गरीब बंदा। तो रात जो है तो पेट्रोल बम गिराया जाता है, रातों रात जो है तो डीजल का बम गिराया जाता है, तो बस क्या करें। पेट्रोल के साथ तो हर चीज महंगी हो जाती है, चाहे वो आटा है, चाहे वो दाल चीनी है, सब
एक महीने में इन्होंने 2 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। आखिर गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए यार। पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है और हमारा गुजरा बहुत मुश्किल है। हम एक तनख्वाहदार तबका सैलरी लेने वाले लोग हैं। होता है कि सुबह जब रात में सो तो सुबह उठे तो पेट्रोल इतना महंगा होता है, भाई क्या हमें गुजारा होता ही नहीं है। महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, समस्या वाली इतनी सैलरीज नहीं, इतना पेट्रोल में लग जाता है फ्यूल। बेकार है, ऐसी हुकूमत बेकार है हमारे लिए। इस्लामाबाद में वजारत सेहत के मुलाजमीन ने डिप्टी डायरेक्टर कमर महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल, बद इंतजामी और अखलाकी खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम है कि कमर महमूद ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अमेज़ पोस्ट शेयर की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ नदीम चौधरी से। नदीम, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, वजारत कौमी सेहत के मुलाजमीन ने सेक्रेटरी सेहत को एक दरख्वास्त दी है जिसमें कहा गया है कि उनके अपने एक ऑफिसर कमर महमूद, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हुकूमत और हुकूमती इदारों के खिलाफ पोस्टें शेयर की हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे कबल भी उनके खिलाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें कहा गया था कि वो सोशल मीडिया पर पोस्टें शेयर करें, जिस पर उनका तबादला करते हुए उनको वजारत कौमी सेहत में भेज दिया गया था। लेकिन वजारत कौमी सेहत के 15 मुलाजमीन की जानिब से दस्तखतशुदा एक दरख्वास्त सेक्रेटरी सेहत को दी गई है जिसमें इस्तदा की गई है कि इनको फौरी तौर पर सरप्लस पूल पर भेजा जाए। ये यहाँ पर इंतजामी मामलात भी ठीक नहीं और इन पर कई बद इंतजामी के इल्जाम भी लगाए गए हैं और कहा गया है कि इनको फौरी तौर पर सरप्लस पूल पर भेजा जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हुकूमत और हुकूमती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टें शेयर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, इस मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा के हालिया करप्शन स्कैंडल पर रद्द-ए-अमल देते हुए शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया है। नैयर बुखारी ने कहा कि यह है तब्दीली कि सूबा करप्शन का गढ़ बन चुका और जो बदउनवानी के खिलाफ दावे करते थे वो खुद इसके मुहाफिज निकले। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह की बजाय ज़ाती तजोरियाँ भरी गईं और तब्दीली हुकूमत के दौर में ख़जाने पर लगातार डाके सवाल निशान हैं। नैयर बुखारी ने BRT, मालम जब्बा और बिलियन ट्री स्कैंडल्स का हवाला देते हुए कहा कि इन पर कोई कार्रवाई ना होना हुकूमती सरपरस्ती को जाहिर करता है। उन्होंने मुतालबा किया कि करप्शन में मुलविस अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए और सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूल की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने चीनी बहरान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि चीनी अब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है और इसकी कीमत में 60 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने पहले चीनी एक्सपोर्ट की, अब इसे दरामद करने की बात कर रही है। ये सब कुछ सिर्फ शुगर मिल्स माफिया के मफाद में किया जा रहा है जिसमें हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है। मजीद कहा कि सेनेट के टिकटों की बोलियां लगाई जा रही हैं। अब एक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का शेख वकास अकरम पर बड़ा इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर शेख वकास अकरम पर जाली डिग्री का इल्ज़ाम लगा दिया। एक्स पर बयान में कहा कि डिग्री तो शेख वकास की भी जाली है लेकिन सिर्फ जमशेद दस्ती को क्यों निशाना बनाया गया। ये कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से अपने ट्वीट में, उनकी जानिब से कहा गया कि डिग्री तो शेख वकास की भी जाली है, फिर जमशेद दस्ती को ही निशाना क्यों बनाया गया, सिर्फ जमशेद दस्ती को ही क्यों निशाना बनाया गया। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया गया है जिस पर फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है और इसमें कहा गया है कि शेख वकास अकरम की डिग्री भी जाली है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।